parameters while you are writing the code for that specific class. Okay. So likewise, again, another some another functions are there. Method types are there. One is static method. In that static method, we are not mentioning any CLS or self argument. We simply writing the argument, simply writing the method, which is we are using normally in function topic. Normally function create करने के लिए जैसे हमने use किया था. Function def, function name in bracket, open bracket, close colon. If don't have any parameter. Okay. So you have to remember in ordinary function, member function must be one parameter is there. That parameter name is self, and this is a question that can be asked. In class methods, method have one parameter, at least one parameter. The name of that parameter is. That answer is self. Am I clear? The question is asked like this. Am I clear? All of you clear with this question? The ordinary function which are used or method which are used in class having one parameter, at least one parameter, and that parameter name is always self. Am I clear? Yes or no? काय चाललं तुमचं काय मला काय कळत नाही बाबा तुम्ही काय आन्सर देत नाही एस नाही बोलत नो नाही बोलत करायचंय की नाही करायचं तुम्हाला येतंय सगळं आय थिंक येतंय सगळं मला वाटतं नो नीड टू टेक दिस टॉपिक ना काही गरज नाही सिलेबस कव्हर करायची मग बरोबर ना आर्या आर्या Am I audible ना? Yes sir. Yes sir. Sorry, my mic was stuck. Yeah. Okay. तो मग काय गरज आहे का घ्यायची सिलेबस नको ना I am revising the topics and you are not responding from your side. At least you have to answer something na? That you understood from the previous lecture. Yes sir. Yes na? And this is what I expected from your side. So in that what class method also we have defined one decorator, that is @class method, and then we have to write your function, that is method. तो यहाँ पे याद रखना आपको फंक्शन को ही मेथड बोलते हैं रिगार्डिंग क्लास पॉइंट ऑफ व्यू ओके एंड नेक्स्ट थिंग instead of self parameter you have to mention the argument CLS argument with respect to that class method. Okay, and then we have covered one topic regarding that class variable. Aditya, उसे सेफ रखना, उसकी कैंडी चेक करना और उसे 3 बजे तक ले जाना. ग्रेट. आफ्टर पार्टी रेसिपी 3 से पहले कहाँ शुरू होती है? सुबह 3 बजे नहीं, दोपहर 3 बजे अंधेरा होने से पहले लौट आना और उसे किसी पार्टी में मत ले जाना. बोरिंग. लेकिन जो भी है तुम्हारे. Thank you so much. Oh, उसका question. So you can just go and like click on his mic. Oh. So with respect to that class variable and object variable, as that concept we also seen, that is class variable are defined inside that specific class, outside the specific method of that specific class. Okay, and then we can use those variables with respect to when your objects are created. Okay, and regarding that one example is also we have covered. Okay, so that example is like this. You have seen we have created one class variable. Inside that class A, that is class underscore var is equal to 0. So def underscore init is the one of the method that is we also call it as a constructor with respect to object oriented programming. जो normally C++ में constructor जब create करते हम, so in that case that constructor name is always the name of that specific class. But here the name of that constructor is always init. That is underscore init underscore followed by the parameters. That is first parameter is always self. Okay, and then what we have done, we have access that class variable inside that init method. Okay, and then one of the variable which is of that specific init method, that is object variable, that is object underscore var. Okay, then that we have printed those variable, that is object value also and class variable value also. Okay, so we will get the answer like this: O1
is that is object value is 10, then we are getting the class variable value is 1. Likewise 22 and 33. So to access the variable class variable, you use what? Class name dot class underscore var underscore name. That is the जो भी आपको वेरिएबल एक्सेस करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद डॉट देना पड़ेगा और उसके बाद क्लास वेरिएबल का नाम. देन यू विल गेट द value for that specific class variable. So this is the concept regarding class variable. So next thing is, और उसके पहले वाले पार्ट तो मैंने बताया आपको स्टैटिक वाला, देन क्लास मेथड, देन इसके पहले हमने देखा था नॉर्मल मेथड, उसमें हमने कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे. उसके बाद कंस्ट्रक्टर दैट इज इनिट मेथड होगा. तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना है, क्लास जब ऑब्जेक्ट जब क्रिएट कर रहे हैं at that time you have to pass the values for that specific parameter, that is name की value abcd, marks की value 30. Likewise as much of parameter that much of value you have to pass. Okay, then to call that specific function we have to use our method object name dot the method that you have to call. Likewise object name that method you have to call. Likewise st dot message. Okay, so this is all about the. Now next one is delete method. So what is delete method? So as I already told you, delete method in this previous section, जैसे कि अभी तक जितने भी प्रोग्राम हमने देखे थे, so we saw that init method which initializes an object of an object when it is created. मतलब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तभी उसको इनिशियलाइज किया हमने. यहाँ पे देखो वैल्यूज पास कर रहे हैं. So that is initialization of that specific object by using what? Init method. Okay. So similar to that init method, we have delete method which does the opposite work of that specific init method. So it is also automatically called when your object going out of the scope. मतलब जैसे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, init method उसका कॉल होगा, उसके बाद आप delete method यूज करेंगे, तब उसके यहाँ वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली कॉल होगा. And this time when the object will no longer use, so its occupied resources are returned back to the system so that they can be reused and when we required. As so it is not compulsory to use that delete method, or we can call it also do it by using delete keyword. Delete keyword का आपको मैंने बताया पहले कि जैसे हमने एक आधा क्या बोलते हैं हम उसको, वेरिएबल क्रिएट किया मैंने, तो उसको डिलीट कीवर्ड से हम डिलीट कर सकते हैं. जैसे हमने लिस्ट देखा था, टपल देखा था, टपल नहीं बट टपल का एक स्पेसिफिक एलिमेंट हमने डिलीट किया था, बट लिस्ट और डिक्शनरी हमने देखा था, डिलीट कीवर्ड के साथ उसको यूज करके उसको डिलीट कर. वैसे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक डिलीट कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट स्पेसिफिक डिलीट मेथड. तो वो कैसे है, सिंटैक्स तो वैसे सेम ही है. जैसे इनिट होता है वैसे ही इनिट की जगह पे डिलीट, दैट इज अंडरस्कोर डिलीट फॉलोड बाय द पैरामीटर and the statement that you want. जनरली हम स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं that object is destroyed, ऐसे लिखना है हमें, मतलब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है उसके लिए. ओके, तो सी हियर an example. So I will write here comment delete method underscore delete underscore method is used to destroy given object. Okay, so how to do that specific code? So one class, for example student class we have created, inside that one init method we have taken, then inside that we have initialized that specific name by self.name is equal to name. Then another method that is message, and by using message we are displaying the values of that name and marks. Then obviously as per our discussion we have created one destructor. It is also called as destructor.
तो एग्जाम में पूछ सकते हैं विच डिस्ट्रक्टर इज यूज इन पाइथन, so that destructor name is underscore underscore delete. Likewise, this is called the constructor. Okay, so we have created one what that S1 student, S2 student, और ये जैसे ही इसका ये होगा मैसेज डिस्प्ले होगा उसके बाद तुरंत क्या होगा, our pointer is go to the destructor and your message will be displayed, this object is destroyed. Okay, we will see the output for this. Okay, so ABCD got 30, PQRS got 30, and then object destroyed, both object, that is S1 also and S2 also. Am I clear? Because two objects we have created. Now, if you created third object, so obviously that third object also destroyed. S3 is equal to student in bracket XYZ, and if you are mentioning the value here 59, and you are calling the third object through the method message. Am I clear? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes. Also you can do like by using also delete method. Delete method भी use कर सकते हैं. S1 S2. Then sir उसमें डिफरेंस क्या हुआ, like Yes, इसकी क्या स्पेशलिटी है? किसकी what लाइक अभी आपने कहा ना कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो सकता है. yes हेलो. हाँ, so बोलो ना. we can use the destructor also, and also we can use the delete method also. Yes, that's why I'm telling you, you can use also explicitly do the same thing using delete keyword also. हाँ, but then दोनों में like डिफरेंस क्या हुआ? अभी यहाँ पे देखो डिफरेंस के वैसे कुछ नहीं होता. जैसे अल्टरनेटिव मेथड बोल सकते हैं ना हम कि नॉर्मली जैसे अभी हमने डिलीट करने के लिए कुछ लिस्ट डिलीट करने के लिए डिफरेंट वेज देखे थे हमने. डिफरेंट वे जैसे प्रोसेस का ये इम्पोर्टेंस, मतलब दोनों के अलग अलग प्रोसेस का इम्पोर्टेंस नहीं है, बस लाइक अल्टरनेटिव मेथड. यस इट इज अल्टरनेटिव. यस वी कैन कॉल इट एज. यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे मेथड के अंदर क्लास के अंदर डिलीट मेथड यूज किया. और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इन दिस अल्टरनेटिव वे we are directly writing the delete keyword and we are directly removing that specific S1. So it is explicit way, and that delete method is implicit way. Okay. Yes. Clear? अरे यहाँ पे अभी देखो, अभी यहाँ पे इसके बाद मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल ये हुआ है, उसके बाद फिर से मैंने लिखा S1 डॉट मैसेज. क्या हो गया? ABCD got 30, बट उसके बाद फिर से आया क्या वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड? नहीं आया. गेटिंग? क्यों? बिकॉज उसने पहली बार उसने क्रिएट किया और यहाँ पे उसके बाद सेकंड इंस्टेंस में उसने क्या किया, उसको कंसिडर नहीं किया, मतलब ऑलरेडी डिलीट हो चुका था वो, और उसके बाद फिर से हमने उसको क्या किया, रीयूज किया. सो और यहाँ पे अभी डिलीट S1 करेंगे तो डायरेक्टली आपको एरर देगा रिगार्डिंग दिस S1 डॉट मैसेज. Getting S1 is not defined. Am I clear? Yes. So this is all about the. अभी यहाँ पे important question यही होता है कि regarding the destructor कभी मतलब वो डायरेक्टली डिलीट मेथड नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे डिस्ट्रक्टर वर्ड यूज ही नहीं करते हैं जनरली. वी आर यूजिंग विथ रिस्पेक्ट टू दैट C++ एंड जावा. We are called it as a destructor and we are called it as a constructor. और यही हम देखेंगे ना, तो वहां पे कैसे यूज करते हैं हम क्लास. जैसे कि अभी मैंने क्लास क्रिएट किया, क्लास इन ब्रैकेट फॉर ABC, ऐसा कुछ तो क्लास क्रिएट किया. ओके, ऐसा कुछ तो सिंटैक्स लिखते हैं बराबर ना. और उसके बाद मैंने ABC नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, बराबर ना. यस और नो? यस सर. जिन्होंने किया होगा. हाँ, और उसके बाद इसके नीचे हम क्या करते हैं, उसका डिस्ट्रक्टर ऐसे क्रिएट करते हैं ना, डिस्ट्रॉय करने के लिए. सेम होता है, सिर्फ वहां पे क्या होता है आगे
यस लाइकवाइज नेगेशन का सिंबल लगाते हैं। नेगेशन का सिंबल करते हैं और उसको यूज करते हैं। यस तो लाइक, बट वहां पे डिलीट वगैरह कुछ होता नहीं है ऑब्जेक्ट क्रिएट डिलीट करने। यहाँ पे उन्होंने अल्टरनेटिव वे दिया है, यू कैन डिलीट इट बाय यूजिंग एक्सप्लिसिटली बाय यूजिंग डिलीट कर। So this is generally used with respect to C++ or Java. Okay, so this is your constructor. With respect to C++, and this is your destructor. तो यहाँ पे रूल फिक्स रूल याद रखना है आपको, मतलब जब यार अभी आप जब C++ पढ़ेंगे इन योर सेकंड ईयर, तो आपको यहाँ वहां पे पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में आपको वहां पे यू टू सम रूल्स आर देयर। कंस्ट्रक्टर नेम इज ऑलवेज द नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक क्लास, क्योंकि उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि इनिट इज योर कंस्ट्रक्टर एंड मैसेज योर नॉर्मल फंक्शन, बट यहाँ पे नहीं समझ में आएगा ना विथ रिस्पेक्ट टू C++। तो इसलिए उन्होंने क्या दिया, रूल इज गिवन योर कंस्ट्रक्टर नेम इज ऑलवेज दैट ऑफ नेम ऑफ योर क्लास and your destructor name is always start with that negation symbol, okay, tilde symbol. Am I clear? Am I clear? Yes or no? अरे बोला कि काहीतरी? Yes or Yes, no? sir. Yes, sir. Okay. Now what we will do? Now we will do one program before we going move to that specific private and public members. अभी यहाँ पे आपने एक चीज याद मतलब आपने एनालाइज की होगी कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारे मेंबर्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक है। एनीबॉडी क्लास के मेंबर्स क्या होते हैं? जनरली आप देखो C++ जिन्होंने पढ़ा होगा वहां पे आपने जब तक पब्लिक डिफाइन नहीं करते तब तक वो पब्लिक नहीं होते, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या होता है, प्राइवेट होता है। यहाँ पे वैसे नहीं है, प्राइवेट होता है। हियर ऑल द मेंबर्स आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक। और उसको प्राइवेट करना है तो उसके लिए आपको उस वेरिएबल को अंडरस्कोर देके आपको वो आपको बाद में बताऊंगा मैं डिफरेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू पाइथन, कि पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में पब्लिक एंड प्राइवेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा मींस माइनर डिफरेंस इज देयर। ओके, सो आई थिंक सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग। Ask them to join now. टाइम मैंने बोला है दो बजे आफ्टर 2 at 2:05 I have started my lecture. Okay, so we will do one program regarding this class and object. Okay. So you can also try at your side also. I will write a problem statement. Note down the problem statement. Write a program that uses class to store the name. Write a program that uses class to store the name and marks of the student. And marks of the student. Use list to store the marks in 3 subjects. तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको स्टोर करने हैं फॉर 1 ऑब्जेक्ट, मतलब 1 स्टूडेंट के लिए। S1 के लिए 3 सब्जेक्ट्स, लाइकवाइज S2 के लिए 3 सब्जेक्ट के लिए। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? सर क्वेश्चन रिपीट करो। यस, माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज देयर, राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस क्लास टू स्टोर नेम एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। मतलब आपको स्टूडेंट का क्लास क्रिएट करना है, उसमें आपको नेम एंड मार्क्स स्टोर करने हैं स्टूडेंट के, बट मार्क्स स्टोर करने के लिए आपको लिस्ट कंसेप्ट यूज करना है और उसको डिस्प्ले करना है बस। सो आई विल ट्राई हियर आल्सो। एंड दिस क्वेश्चन एक्चुअली जब थ्योरी एग्जाम था, ये फर्स्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था तब ये प्रोग्राम पूछा था फॉर 6 मार्क्स। अभी आपको तो थ्योरी नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज पर्पज यू कैन ट्राई दिस कोड। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग नाउ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्लास क्रिएट करना है जिसमें आपको नेम एंड मार्क्स स्टोर करने हैं, एंड उसके बाद जो भी मार्क्स है ना वो आपको क्या करना है, लिस्ट में स्टोर करने। तो ऑब्वियसली आपको लिस्ट में स्टोर करना है तो append फॉर लूप यूज करना ही पड़ेगा। ओके, सो आई विल ट्राई दिस कोड।
So first, what is the requirement? I will create first class, that is student class. All of you try this. So this is class that I have created student. Okay. Obviously अभी एक यहाँ पे मैं क्या करूँगा, def method करके, def use करके I will create one constructor, that is init method, and then I will pass the parameters self comma name, क्योंकि मुझे नेम एक ऐसा कंस्ट्रक्टर थ्रू एक ही पैरामीटर लेना है, दैट इज नेम ऑफ द स्टूडेंट, बाकी तो मैं मेथड से करने वाला हूँ। सेल्फ कौन सा, रिगार्डिंग मार्क्स, तो उसके लिए सेपरेट फंक्शन लूंगा मैं, एंटर मार्क्स वाला। तो फर्स्ट आई विल इनिशियलाइज हियर नेम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, एंड नेक्स्ट वन इज सेल्फ डॉट मार्क्स, उसको एम्प्टी रखूंगा मैं, बिकॉज I have to create a list. So list मैंने empty रखा है यहाँ पे, ओके, एज पर जो अभी तक हमने किया। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट। तो कंस्ट्रक्टर में जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा वो पूछेगा नेम के लिए, मतलब नेम मुझे पैरामीटर पास करना है, ओके। देन आई विल डू वन थिंग, आई विल क्रिएट वन फंक्शन रिगार्डिंग एंटर मार्क्स। तो मार्क्स के लिए मैं एंटर अंडरस्कोर मार्क्स नाम का एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ओके। अभी इसमें कुछ पैरामीटर नहीं, सिर्फ सेल्फ यहाँ पे रखूंगा। And then what I will do, I will take a for loop for I in range. अभी 3 सब्जेक्ट है इसलिए मैंने क्या किया, 3 यहाँ पे वैल्यू, ऑब्वियसली मुझे पता है कि 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने। नाउ टेल मी, ये तो ऑलरेडी हमने बहुत बार किया है। INT इन ब्रैकेट इनपुट इन ब्रैकेट एंटर द मार्क्स, enter the marks of student, enter the marks, enter the marks ऐसे किया तो भी चलेगा। and then what we have to do next, क्या करना पड़ेगा अभी, next what we have to do, किसमें स्टोर करने मार्क्स, टेल मी, मार्क्स किसमें स्टोर करने अभी बताओ, लिस्ट में, हाँ लिस्ट में, दैट इज सेल्फ डॉट मार्क्स, ओके। एंड डॉट क्या करना है, अपेंड करना पड़ेगा ना, अपेंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा ना, एम आई क्लियर, यस और नो, yes, so this is our what function, we have created one function having name enter marks, उसमें हमने एज पर आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कितनी सब्जेक्ट के मार्क्स लेने, उसलिए मैंने क्या किया, फॉर लूप लिया फॉर आई इन रेंज 3, ओके। तो उसके बाद मार्क्स m इज इक्वल टू INT इनपुट एंटर द मार्क्स सेल्फ डॉट मार्क्स डॉट अपेंड। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और एक कर सकता हूं मैं कि कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स है, इसलिए मैं क्या एक चेंज करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करता हूँ। तो %s यहाँ पे लिखता हूं मैं, देन इन सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट में वो चेक करना है मुझे, तो इन सब्जेक्ट %d मतलब सब्जेक्ट 1 लाइक वाइज, ऐसे मुझे करना है। तो सब्जेक्ट 1 मतलब वो आई की वैल्यू वहां पे आई विल कंसिडर, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद अभी फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब यहाँ पे परसेंटेज लेना पड़ेगा मुझे, इन ब्रैकेट सेल्फ डॉट नेम, क्योंकि सेल्फ डॉट नेम। उसके बाद कॉमा करके i+1, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट है वहां पे, ओके। यहाँ पे कैसे होगा वो, एंटर द मार्क्स ऑफ %s मींस व्हाट, सेल्फ नेम मतलब फॉर एग्जांपल नेम मैंने अनिशा दिया होगा, सो एंटर द मार्क्स ऑफ अनिशा इन सब्जेक्ट %d, i मतलब i+1, i की वैल्यू 0 +1 मतलब सब्जेक्ट 1, ऐसे डिस्प्ले होगा वहां पे। एम आई क्लियर, यस और नो, यस और नो, मतलब पूरा मैसेज वहां पे डिस्प्ले होगा, एंटर द मार्क्स ऑफ अनिशा इन सब्जेक्ट 1 लाइक वाइज, सो फॉर 2 3 लाइक वाइज, ओके। नाउ ये हो गया हमारा एंटर मार्क्स किया अभी हमने। अभी उस मार्क्स को हमें डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन होगा डिस्प्ले नाम का फंक्शन, डिस्प्ले नाम का फंक्शन, डिस्प्ले, ओके। सो इन दैट डिस्प्ले फंक्शन
Again, I will take as per our rule one parameter self parameter. Okay, and print कैसे करेंगे? Print in bracket. For example, कैसे अभी? Yes, self dot name, क्योंकि मुझे नेम भी डिस्प्ले करना है उसका, कॉमा got, कॉमा क्या got? वो लिस्ट, that is self dot marks. So this number of marks मतलब वो लिस्ट में डिस्प्ले होगा. अनीशा got 89, 81, 88, 87 likewise. Okay, ऐसे मैंने डिस्प्ले किया है. So we will run this code. ओके, रन के पहले ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं किया ना हमने. ऐसा और नो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना. क्लास क्रिएट करने से कुछ होता नहीं है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करना है? S1 इज इक्वल टू पहला स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्लास इज देयर. अभी यहाँ पे कुछ तो मुझे वैल्यू पास करना पड़ेगा ऑब्वियसली. फॉर एग्जांपल अमोल मैंने पास किया, दैट इज फर्स्ट स्टूडेंट नेम. देन अभी उसके बाद मुझे क्या करना है? S1 डॉट एंटर मार्क्स देने, तो एंटर मार्क्स फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा, एंटर अंडरस्कोर मार्क्स. ओके, सो ये हो गया एंटर मार्क्स. अभी यही सेम क्या करूंगा मैं? आई विल डू इट फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट, दैट इज सेकंड स्टूडेंट के लिए. सो S2 ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया. सो S2 एंड S2 नेम इज फॉर एग्जांपल अनिल. ओके, एंड ये होने के बाद लास्ट में क्या करूंगा मैं? मार्क्स एंटर करने के बाद S1 को डिस्प्ले करूंगा, S1 डॉट डिस्प्ले एंड देन S2 डॉट display. All of you getting the code or not? All of you getting what I am doing here? The problem statement that I have given you. समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes. So यहाँ पे पहले हमने क्या किया? एक क्लास क्रिएट किया स्टूडेंट नाम का. उसके बाद उसके अंदर एक मतलब मुझे डायरेक्टली लेना था एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन मुझे वैल्यू पास करना था. इसलिए मैंने नाम डायरेक्टली लिया, self dot name is equal to name. Okay, then initially मैंने लिस्ट को empty रखा. अभी लिस्ट में एलिमेंट डालने के लिए मैंने क्या किया? 1 by 1 मार्क्स एंटर करने के लिए मैंने फॉर लूप लिया. उसमें वो मार्क्स जो भी है वो मैंने किस में ऐड किए? self dot marks dot append में. ओके, एंड देन टेप डिस्प्ले फंक्शन के साथ मैंने क्या किया? उसको डिस्प्ले किया. और उसके बाद दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए. देखो यहाँ पे आया, एंटर द मार्क्स ऑफ अमोल इन सब्जेक्ट 1. फॉर एग्जांपल अमोल गॉट 56, लाइकवाइज सब्जेक्ट 2 गॉट 78 एंड लाइकवाइज सब्जेक्ट 3 गॉट 89. अभी ये किसके पूछ रहा है? अनिल के पूछ रहा है. सो आई विल राइट मार्क्स हियर फॉर अनिल. गेटिंग? Amol got 56, 78, 89. Anil got 67, 98 and 45. Am I clear? Am I clear? Yes sir. Yes sir. Yes. Yes. तो कैसे हो रहा है? देखो पहले मैंने क्या किया? ये क्लास क्रिएट किया. अभी एग्जीक्यूशन देखते कैसे होगा. तो जब मैंने S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसमें मैंने वैल्यू क्या पास किया? अमोल, मतलब वैल्यू किसकी हो गई? नेम की. तो नेम असाइन हो गया हमारा. उसके बाद नेम असाइन होने के बाद मैंने किसको कॉल किया? एंटर मार्क्स को. एंटर मार्क्स को कॉल करने के बाद फॉर आई की वैल्यू 0 है, तो एम के लिए उसने पूछा एंटर द मार्क्स ऑफ परसेंटेजेस. परसेंटेजेस मींस व्हाट? नेम की वैल्यू कितनी है? अमोल. तो अमोल इन सब्जेक्ट परसेंटेज इन वन स्लैश व्हाट? I+1. ये मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर में बताया था आपको. कहाँ पे? चैप्टर नंबर 4 में. तो आई की वैल्यू 0, 0 + 1, तो मुझे 1 चाहिए इसलिए मैंने I+1 किया. सो व्हाट इज आंसर दैट आई विल गेट हियर? एंटर द मार्क्स ऑफ अमोल इन सब्जेक्ट 1 वो पूछेगा. देन आई विल एंटर द वैल्यू ऑफ एम. तो एम की वैल्यू क्या एंटर की मैंने? 56. तो 56 वैल्यू मुझे अपेंड करना है किसमें? एम्प्टी लिस्ट में. तो कैसे करेंगे? self dot marks dot append इन ब्रैकेट एम. ये हो गया पहला इटरेशन. लाइकवाइज आई की वैल्यू कितनी होगी? 1. तो 1 के लिए मतलब एंटर द मार्क्स ऑफ अमोल इन सब्जेक्ट 2. तो दैट वैल्यू आई हैव पुट हियर 78. लाइकवाइज अगेन अपेंड किया उसको. उसके बाद अगेन वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड. So it will be asking for enter the marks of Amol in subject 3. So I have entered the marks 89. तो उसके बाद मैंने append किया. तो 3 के लिए कंडीशन क्या होगा? फॉल्स होगा. तो लूप के बाहर आएगा.
लूप के बाहर आने के बाद कौन सा फंक्शन मैंने कॉल किया, इट इज फॉर अगेन क्या S2 ऑब्जेक्ट के लिए, दैट इज अनिल के लिए हो गया। ये अनिल के लिए होने के बाद मैंने क्या किया, S1 डॉट डिस्प्ले किया एंड S2 डॉट डिस्प्ले किया। उससे क्या हो गया, मेरा जो आउटपुट है मतलब जो भी मुझे वैल्यूज पुट किए थे फॉर सब्जेक्ट 1 2 3 दैट आई एम गेटिंग हियर। ओके, एम आई क्लियर? यस और नो? एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes. So all of you try this and send me the screenshot of this program also. Right now. Right now, nahi. After lecture, you have to send me, but you have to note down this code, and I will check the code for after your lecture. So it is necessary to type this code. So यहाँ पे हमने क्या क्या किया, दो चीजें की। एक तो हमने मार्क्स एज पर आवर इनपुट नेम एंड क्लास, नेम एंड मार्क्स हमें इनपुट लेने थे, तो हमने वो लिए। इसके बाद स्टूडेंट, ऑब्वियसली स्टूडेंट का डेटाबेस, इसलिए मैंने नाम भी स्टूडेंट ही दिया क्लास को। उसके बाद अभी मार्क्स डिस्प्ले करने हैं, इसलिए मैंने डिस्प्ले नाम का फंक्शन लिखा। सो और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और वन बाय वन मैंने क्या किया, हर एक फंक्शन को कॉल किया। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस और नो? हाँ Yes, सर। sir. Yes. So we will move forward with respect to next concept, और उसके बाद और एक दो प्रोग्राम लेके रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट, मतलब क्लास ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस के लिए कि आपको समझ में आएगा हाउ टू क्रिएट क्लास, हाउ टू, हाँ या दिस पार्ट पब्लिक एंड प्राइवेट डेटा मेंबर्स। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जनरली आप जब जिन्होंने क्लास CPP पढ़ा होगा, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++, आपने देखा होगा कि while you are creating the classes there are two types of data members. Data members means data variable. प्रोटेक्टेड भी होता है ना? Yes, yes, yes. तो protected is used in inheritance, that is base class के members आपको access करने derived class में, so in that case you can use protected. Yes, so that is also one, but that is optional part because जब inheritance use करेंगे तभी हम वहाँ पे use करेंगे। In actual में there are two types and those types are public data members and private data members. Okay, so protector को हम यहाँ पे अभी consider नहीं करेंगे because with respect to Python inheritance concept में वो या ज्यादातर use ही नहीं होता यहाँ पे, so we directly discuss about public data members and private data members. Okay, so data members are nothing but your variables and method declared and defined in the class. Okay, as I have already told you कि जो भी class होता है वो दो चीजों से बनता है, एक तो होता है नॉर्मल वेरिएबल दैट इज डेटा मेंबर्स एंड सेकंड थिंग इज योर फंक्शंस दैट इज मेथड्स। सो दोनों की भी क्या हो सकता है, एक तो प्राइवेट हो सकते हैं, एक तो पब्लिक हो सकते हैं। ओके, सो पब्लिक डेटा मेंबर्स आर एक्सेसिबल इन क्लास एंड आउटसाइड द क्लास आल्सो। पब्लिक डेटा मेंबर्स आर एक्सेसिबल इन क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। मैंने आपको फीचर बताया था देखो स्टार्टिंग में ही कि एब्स्ट्रैक्शन। सो एब्स्ट्रैक्शन मींस व्हाट, हाइडिंग एसेंशियल डेटा. So hiding essential data means what we have to do? We have to make some members as a public and some members as a private. Am I clear? Am I clear? Am I clear? Hello? Yes. Hello? Yes, sir. हाँ, abstraction समझ में है आपको? Hiding essential data means what? You can make your some members as a private and some members as a public. Okay, so private data members are accessible in class only, not outside the class. See here, Sure. private data members are accessible in class only, not outside the class. Am I clear? Sir, अभी हाँ बोलो। सर तुम्ही हॅलो बोल ना। मागच्या प्रोग्राम मध्ये असं लिहिलं होतं M is equal to int input enter the marks of %s in subject %d. हाँ हाँ, तर ते %s आणि %d इनबिल्ट आहे का? अरे बाळा इनबिल्ट कसं, हा % आणि पर्सेंटेज इनबिल्टच आहे. इनबिल्ट इन द सेन्स व्हॉट की these are the format specifier given by Python or any programming language. म्हणजे इथे काय याला काय म्हणतो आपण जनरली की नॉर्मली प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये, अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये फॉर्मॅट स्पेसिफायर आर रिक्वायर्ड व्हाईल यू आर प्रिंटिंग एनीथिंग. ओके, तर आता इथे काय केलं मी, एंटर द मार्क्स ऑफ पर्सेंटेज म्हणजे काय की सेल्फ डॉट नेम ची व्हॅल्यू इथे रिप्लेस होईल. म्हणजे सेल्फ डॉट नेम ची व्हॅल्यू काय टाकलेली ती अमोल फर्स्ट व्हॅल्यू while you are creating the object S1. ओके, आणि I+1 म्हणजे काय, I ची व्हॅल्यू 0 आहे तर मला 1 पाहिजे, सब्जेक्ट 1 म्हणून 1 केला, I+1 म्हणजे 1 झाला. म्हणजे % D is replaced by 1 and %s is replaced by
दिस इज सिंटॅक्स, हा स्टँडर्ड सिंटॅक्स आहे गिवन बाय पायथॉन. एम आय क्लिअर श्रेयश? हो सर. इथे स्ट्रिंग आहे म्हणून आपण %s घेतला आणि इथे इंटिजर आहे म्हणून इथे %d घेतला. समजलं आता? क्लिअर आहे? हा, पर्सेंटेज स्ट्रिंग आणि %d मार्क्सचे नंबर्स आणि %f पाहिजे असेल तर तुला फ्लोटिंग पॉईंट नंबर साठी %f घेऊ शकतो. नो प्रॉब्लेम. अरे तो फॉर्मॅट स्पेसिफायरचा टॉपिक पाहिला ना आपण याच्यामध्ये स्ट्रिंग मध्ये 4था चॅप्टर. हो पाहिलंय. त्याच्यामध्ये हा मग तोच कन्सेप्ट मी इथे यूज करून दाखवलाय तुम्हाला, बाकी वेगळं काही केलेलं नाही. क्लिअर आहे आता? येस सर. Okay. So this is nothing but what? This is what regarding what? That specific format specifier, and regarding format specifier we are using that inside that class also. Okay. So आता इथे बघा private and public members बघा. Public members can be accessed outside the class also, but private members cannot be accessed outside the class. Now I will give you one example regarding the same. Okay. So that example I will type directly. For example, नीट लक्ष द्या आता. So class A okay, and then obviously as init शक्यतो आता हॅबिट लावूनच ठेवा की जेणेकरून तुम्हाला असे काही पॅरामीटर की जे तुम्ही डायरेक्टली ऍट काय जवळपास जेव्हा ऑब्जेक्ट क्रिएट करशील तेव्हा ते पास करून टाकायचे. त्याला सेपरेटली काही करायची गरज नाहीये, सेपरेटली पास करायची गरज नाहीये. तर var1 एक घेतो मी आणि एक var2 घेतो. ओके. आता मी काय करतोय बघा, इकडे 2 व्हेरिएबल्स घेतले. तर बघा आता पहिला व्हेरिएबल आता नॉर्मली बाय डिफॉल्ट लक्षात ठेवा, बाय डिफॉल्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ क्लास आर पब्लिक. एम आय क्लिअर? एम आय क्लिअर? अरे बोला की जरा काहीतरी बोला. येस और नो तर बोला. येस. पण दैट इज नॉट द केस विथ योर C++. जो ने C++ पढ़ा होगा, whether that is correct with respect to C++? नो. वहां पे आपको क्या करना पड़ता है? पब्लिक कीवर्ड यूज करना पड़ता है टू मेक योर वेरिएबल्स एज अ पब्लिक. अभी यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, टू मेक अ प्राइवेट आई हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज $_ एंड देन वेरिएबल नेम. अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, पैरामीटर पास मैंने नॉर्मल पास किया, बट उसको मैंने इनिशियलाइज क्या किया, प्राइवेट किया है. कहां पे? इनिट मेथड के अंदर. एम आई क्लियर? अभी यहां पे देखो, यहां पे var1 क्या होगा हमारा? पब्लिक. आई विल राइट हियर var1 इज पब्लिक डेटा मेंबर. पब्लिक डेटा मेंबर. वेर हियर var2 इज अंडरस्कोर लिखता हूं, बिकॉज वो डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या करना है, अंडरस्कोर लिखता है. दैट इज द सिंटैक्स गिवन बाय पाइथन. ओके. सो यहां पे आपको मैंने दिखाया कि कौन से मेंबर प्राइवेट एंड वो आपको पता भी चलेगा व्हेन यू आर रनिंग दिस कोड. अभी इसको मैं क्या करूं, सिंपली डिस्प्ले करता हूं. डिस नाम का फंक्शन लिखता हूं, उसमें एक पैरामीटर पास करता हूं सेल्फ. ये चीजें आपको भूलनी नहीं है अभी, ये मतलब ये हैबिट आपको करके रखनी है व्हेन यू आर यूजिंग दिस प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू. अभी पहले क्या करेंगे, var1 को डिस्प्ले करेंगे. सो var1 इक्वल टू, सो var1 मतलब यहाँ पे सेल्फ डॉट var1, और उसके बाद क्या करेंगे हम, var2 को करेंगे प्रिंट इन ब्रैकेट डबल कोट var2 इक्वल टू सेल्फ डॉट अंडरस्कोर var2. ओके. और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. हो गया. सो ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल O1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, और A इन ब्रैकेट क्या डालना पड़ेगा, हाउ मेनी वैल्यूज यू हैव टू पास हियर नाउ, इनिशियलाइजेशन. टेल मी फास्ट. 1 2 3 4 कितने, हाउ मेनी वैल्यूज वी हैव टू पास हियर नाउ. बोला की 1 2 3 4 काहीतरी आन्सर द्या. 2 वैल्यूज. यस. 20, 30 बिकॉज 2 वेरिएबल्स. एक हो तो यहाँ पे var1 की वैल्यू 20 हो गई, var2 की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई.
Now I will call the function obj.disk and we will run this. OBJ लिखा है मैंने, एक्चुअली OBJ नहीं था, वहां पे O1 चाहिए. गेटिंग? where 1 is 20 and where 2 is 30. अभी वो प्राइवेट कौन सा है, पब्लिक कौन सा है, वो करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा मुझे, बताओ मुझे, एनीबॉडी, to check whether that is private or public. How to check this? Try to access them in. Yes, perfect. So I will do what? Print O1 dot var1 and similarly for var2. So अभी यहाँ पे एरर क्या मिलेगा मुझे, कौन से लाइन के लिए एरर मिलेगा मुझे, which line I will get the error? काय तुम्ही, ऑब्वियसली सेकंड ला एरर भेटणार ना, समजला? A object has no attribute underscore var2. Am I clear? 20 की वैल्यू डिस्प्ले होगी बट 30 वैल्यू इज नॉट डिस्प्ले. Am I clear? बोला की yes or no? हाँ बोलना. जर मी सेल्फ कॉमा var1 कॉमा अंडरस्कोर var2 लिहिलं तर मग करेक्ट येईल का आता? म्हणजे कुठे म्हणते तू? तर पूर्ण दाखवा ना प्रोग्राम. हे काय वरतीच आहे. येस, लाईन नंबर 94. लाईन नंबर 94. हा, तिथे काय करायचंय? सेल्फ कॉमा var1 कॉमा अंडरस्कोर var2. इथेच तुला डिक्लेअर करायचं म्हणतोय का तू असा? हा, आणि होईल का म्हणतोय तू, असं म्हणतोय का? हो सर. कसं चालेल, कसं होईल सांग बरं, का नाही होणार का नाही होणार ते सांग. होईल का नाही होईल सांग पटकन, तूच सांग आता आन्सर याचं. नाही होते. का नाही होणार सांग आता, त्याचं रिझन पण सांग. काय रिझन सांग. कारण की हा कन्स्ट्रक्टर इनिशियलाइज करतो आपण, ते इनिशियलाइज आपण आता हा ही मेथड आहे त्याच्यामध्ये आतमध्ये नंतर केल्यानंतर आपण त्याला काय करतोय, मेन्शन करतोय. ते व्हेरिएबल काय त्याच्यामुळे स्टार्टिंगला होणार नाही, ते असंच करावं लागेल तुम्हाला. ओके, आता इथे बघा, आता तो जर ऍक्सेस जरी करायचा असेल त्याला सुद्धा वेळ दिलाय त्यांनी. सो व्हॉट इज द वे टू ऍक्सेस द प्रायव्हेट मेंबर आउटसाइड that class? So I will write here one statement. तर हे पण स्टेटमेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कॅन बी आस्क्ड इन एक्झाम. तर बघा कसं करायचंय. ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्विसली काय नाही, त्याला ऑब्विसली तुम्हाला क्लासचं नेम टाकावं लागणार. ते कसं करायचं, अंडरस्कोर, क्लासचं नाव काय माझ्या ए अंडरस्कोर var2. आता येईल का बघा. आता इथे मी काय करतो, याला कमेंट टाक. भेटलं आउटपुट. टू access the private member outside the class. How to access? Getting? So I will write here comment. To access private member outside class, use object name dot underscore class name. This syntax can be asked in your exam. What is the correct syntax to access the private member outside the class? And then variable name. All of you clear with this thing? ये syntax समझ में आया सबको? Am I clear? Okay. So this is all about the private and public members. तर एक लक्षात ठेवा की बाय डिफॉल्ट तुम्ही काहीच नाही केलं तर ते मेंबर्स पब्लिक राहणार आहे. जर तुम्हाला एखादा मेंबर जर प्रायव्हेट करायचा असेल, यू कॅन यूज अंडरस्कोर while you are initializing that member inside that specific class by using underscore. Am I clear? Yes or no? Okay.
सो आता याच्यानंतर एक टॉपिक बाकी आहे, प्रायव्हेट मेथड्स. जसं प्रायव्हेट मेंबर्स असतात ना, पब्लिक मेंबर्स, तशाच मेथड्स पण असतात. तर ऑब्विसली मेथड्स पण कशा असणार आहे, त्याला अंडरस्कोर द्यायचं. म्हणजे इथे दिस वन, इथे अंडरस्कोर केलं मी, and I will run this code now. Getting? A object has no attribute this. Am I clear? येस सर. समजलं का? काय करायचं समजलं सगळ्यांना? मेथडला जर तुम्हाला स्पेसिफिक मेथड को आपको प्राइवेट करना है तो सिंपली यू हैव टू यूज डबल अंडरस्कोर बिफोर दैट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक, prefix by name is prefixed by underscore. Am I clear? Okay, so I will write here hash private method. So obviously म्हणजे by default काय असतात सगळ्या मेथड? by default all methods are public. Okay, अभी इसको भी मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है. तो क्या कर सकता हूं मैं एक्सेस करने के लिए? सिमिलरली ऐसे ही करेंगे जैसे यहां पे किया मैंने, सेम वे. O1 A underscore disk, bracket open, bracket close. A object had not disk ना. Okay. इथे कमेंट टाकायची आहे. ओके, आता नाव विल गेट आउट. गेटिंग? येस और नो? अरे बोला की काहीतरी. where 1 is 20 and where 2 is 30. With respect to that private method, and for that what we are using, name of the class. Obviously name of the class use केलं म्हटलं होतं ते access होणारच आहे, but to make your some part as a essential part as a private, you can make those members as a private or those methods as a private. Okay, I think all of you understood the concept of private and public also. Am I clear? अरे बोला काहीतरी पटकन. यस सर. यस. तो होमवर्क क्या बोला है मैंने आपको कि जो भी अभी तक के कंसेप्ट हमने आज किए, प्राइवेट, पब्लिक, स्टैटिक मेथड, देन कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, all things you have to try it, and I want from all of you I want the response. क्योंकि अभी बहुत हो गया, बहुत से स्टूडेंट अभी थोड़े से रिलैक्स हो गए जैसे जैसे लेक्चर्स खत्म होने को आए, सिलेबस खत्म होने का आया. So I want from all the students I want reply regarding homework. और आपका लोड कम करने के लिए मैंने असाइनमेंट नंबर 5, असाइनमेंट नंबर रिगार्डिंग यूनिट नंबर 5 and 6, only 4 questions I have given you, and those 4 questions are covered in assignment number 5. नवऱ्याचे पैसे होते म्हणतो बाबा त्याची याची गुन्ह्याची होती निकिता. 2 questions on unit number 5 दाखवतो ना. and 2 questions on unit number 6. म्यूट कर. असाइनमेंट नंबर 5 में आपने देखा होगा जो मैंने अपलोड किया है कल ने, आज सुबह. सो असाइनमेंट नंबर 5 में टोटल 4 क्वेश्चंस आर देयर. आउट ऑफ दैट 4 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस और यूनिट नंबर 5 and 2 questions और यूनिट नंबर 6, that is file handling. वो इजी, बहुत इजी है. सिंपली यू हैव टू रिमेंबर द फंक्शंस that are used for फाइल हैंडलिंग. और कल के प्रैक्टिकल में क्या करेंगे हम, फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम देखेंगे जो आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा मैं. जो आपको फाइल में लैब असाइनमेंट में लिखना नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज पर्पस यू कैन, बिकॉज ये JDoodle के ऊपर ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, बिकॉज वी रिक्वायर टेक्स्ट फाइल फॉर दैट. तो टेक्स्ट फाइल इनपुट लेना है, उसके बाद उसको दूसरी फाइल क्रिएट करनी है लाइक वाइज. तो उसके लिए हमें प्रॉपर सेटअप के थ्रू करना पड़ता है. यहाँ पे मैंने सेटअप किया अभी, तो कल आपको लेक्चर में प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा आपको दैट लैब असाइनमेंट रिगार्डिंग द फाइल हैंडलिंग. एम आई क्लियर? येस सर. यस. तो अभी आपको क्या करना है, तो सिर्फ अभी आपका रिगार्डिंग राइटर्स, तो मैंने आपको सबको बोला है कि आपको डेडलाइन मैंने 24 जुलाई दिया है, तो 24 जुलाई तक सारा आपको करना है कंप्लीट. ओके, आई थिंक आपका प्रीलिम 25, 26, 27 ऐसा शेड्यूल हो सकता है 3 दिन में. एवरी डे 2 पेपर्स and 1 day 1 paper likewise, and from 28 you will get the PL's preparation leave. Am I clear?
प्रोबेबल शेड्यूल बोल रहा हूँ मैं आपको, फिक्स नहीं है. हाँ. तर 24 पर्यंत असाइनमेंट 4 आणि 5 पण करायची आहे का? येस 4 and 5 बोथ आर युअर टू सबमिट. आता हे युनिट बघा, हे युनिट एक दोन लेक्चर मध्ये संपून जाईल. त्याच्यामध्ये काय राहिलंय, थोडंच पार्ट राहिलंय. एक तर राहिलं, हा प्रायव्हेट मेथड पण झालेलं आहे, पब्लिक मेथड पण राहिले. एक दोन प्रोग्राम घ्यायचे बाकी मला फक्त, बाकी सगळं ऑलमोस्ट कव्हर झालेलं आहे. ते एक लेक्चर मध्ये हे कव्हर होऊन जाईल. आणि त्याच्यानंतर आपलं मग फाईल हँडलिंगचं काय ते मी उद्या क्लास लॅब मध्ये काही पार्ट घेईल आणि बाकीचा पार्ट मी तुम्हाला डायरेक्ट लेक्चर मध्ये कव्हर करून टाकेल. सोपं आहे ते, काही नाही, फक्त मेथड्स लक्षात ठेवायच्या. त्याच्यावरती प्रोग्राम असा स्पेसिफिकली विचारला जात नाही, डायरेक्टली मेथड्स विचारले जातात. म्हणजे रीड फाईल करायला काय केलं जातं, राईट फाईलला काय केलं जातं, अपेंड साठी काय केलं जातं. सिंपल आहे. सगळ्यात सिंपल टॉपिक जो कुठला असेल तो युनिट नंबर 6, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. फक्त जरा ह्या युनिटवरती थोडंसं लक्ष द्या. याच्यावरती पण अजून काही प्रोग्राम्स पाहू आपण. ओके, एम आय क्लिअर? अरे कळतंय का? सर. येस सर. येस. तर आता तुमचा लोड कमी करण्यासाठी मी फक्त 4च क्वेश्चन दिले युनिट नंबर 5 आणि 6 वरती. ती असाइनमेंट नंबर 5 इज युअर लास्ट असाइनमेंट फ्रॉम थिअरी. आणि ऑलरेडी 8 असाइनमेंट आपल्या लॅबच्या झालेल्या आहेत. सो नो नीड टू राईट एनिथिंग रिगार्डिंग अदर दॅन दिस 8 असाइनमेंट. फक्त प्रॅक्टिससाठी फाईल हँडलिंगची असाइनमेंट उद्या मी घेणार आहे, ती करायची सगळ्यांनी. म्हणजे ज्यांच्याकडे समजा लॅपटॉप आहेत, मशीन्स आहेत, त्यांच्यासाठी आहे ती. बाकीच्यांनी पण नॉलेज पर्पज साठी ते करू शकतो. ओके. सो रोल नंबर 1. रोल नंबर 1. Present, sir. रोल नंबर 2. Sir, 601 present. ओके. रोल नंबर 3. रोल नंबर 3. C3 present, sir. Sir, B3 Okay. present. Okay. Then roll number 4, 5. Roll number 4 present, sir. Yes, 5. Sir, C2 present. Okay. Roll number 6. Roll number 6. 7. C7 present, sir. Okay. 8. C8 present, sir. Okay. E8 is also present. 9. B9 absent. 10. Roll number 10. Okay. 10. B10 present. C10 present. 11. B11 present, sir. Okay. C11, yes, present. 12. Roll number 12. B12. Absent. 13. 14. 15. C14 absent. 16. B16 present. 17. B17 present, sir. Okay. B18. 19. B18. C18. Okay. B18 absent. B19 present. Yes. 20. 20. B20 absent. 21. 22. 23. 23. Okay. 24. 24. Okay. 25. C24 absent है ना? C24. Okay. Sir, C30 present. 25 present. Okay. 26. B26. B27. B27. 28. 29. 30. 31. C31 present, sir. Yes. 32. Okay. 33. B32 present, sir. Yes. 34. 35. 36. 36. 37. C37 present, sir. Yes. 38. C38. C38. Absent. 39.
40, 41, 42, 42, B42 absent. 43, B43 absent. 44, C44, C45, 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 C46, C46 present, sir. B46, B46, 47, 48, B48, 49, B49, B49, okay, 50, 50, B50, B50, C50, okay, B50 upset, 51, 52, Present. okay, 53, 53, absent, B53 absent, Present, sir. 53, C, B53, okay, 53, 54, 54, 55, okay, B55 absent, no, present, okay, 56, present, okay, 57, 58, yes, 59, C57 present, sir. 59, 60, 59, 60, 59 absent, 61, 62 present, 62 अनुभव आएगा, yes, 63, Present, sir. 63, yes, Oh, sir, 64, 65, 66, 66, 65, 66 absent, 65 present, okay, 66 absent, 67, 68, 68. So absent number from C division 14, 38, 66 and 68. And from B division 7, 9, 12, 18, 23, 36, 42, 43, 46 and 53. Sir, B07 Okay, 7 present. present. Next. 7 present, yes. सर 3 पण आहे तिथं टाकले तुम्ही. हाँ, त्यांनी 3 टाकले. नहीं 3 present है already. Okay, so we will stop here.